Hello guys. So let's move on the next question in issue of shares. Illustration number 29. Sangeeta Limited issued application for shares 60,000 shares of rupee 10 each at par. Application is of 2, allotment 3 and first is second column 5. Application received for 92,000 share. They issued 60 and application received for 92. So this is oversubscription of shares. Now 40,000 shareholders were allotted 40,000 shares एंड 50,000 वाले को दिया उसने 40% शेयर, 2,000 वाले को उसने कुछ भी नहीं दिया. दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Next it is rupee 1,08,000 was realized on account of allotment and rupee 2,50,000 on account of call. यहाँ पर आपको अमाउंट दिया है कि allotment से हमें इतना मिला और फर्स्ट कॉल से हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ. द डायरेक्टर्स डिसाइड टू फॉरफिट द शेयर जिनके ऊपर whom which full allotment was made and allotment money was overdue. कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया जिनके ऊपर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया. इट इज़ नॉट मेंशन कि कितने शेयर्स को फॉरफिट किया. सो इट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट. So firstly, this topic is oversubscription. So we need to prepare the table here. You know how we have to prepare. First column is shares applied, shares allotted, money received. Then we have application, allotment, first call, and last is for the bank. The first column total is jitni application आई है. Application received for 92,000 share. The second column is number of issued shares. They are 60,000. Now the proportion is mentioned in the table. 40,000 वाले को दिए full, 40 को means दिए 40 के 40. 50 वाले को दिया 40%, 2,000 का है nil. 50,000 वाले को इसका 40% अलॉट हुआ means 20,000 और 2,000 वाले का है nil. The application is of 2, this is of 3 and this is of 5. Now the first column multiplied by 2 application. It is 80,000, 1 lakh, 4,000. Second multiplied by again the application. 80, 40 and this is nil. Nil का मतलब है उसका पैसा हमने रिटर्न कर दिया, उसको कोई भी शेयर्स नहीं मिले तो रिटर्न किया तो पैसा उसका बैंक से. नाउ द फर्स्ट कॉलम 80 जितने पैसे आने थे उतने ही पैसे आए हैं, कोई भी डिफरेंस का अमाउंट नहीं है. एज पर द नेक्स्ट 1 लाख मनी रिसीव हुई है. एक्चुअली एप्लीकेशन से 40,000 आना था. सो द डिफरेंस इज ऑफ रुपी 60,000 विच वी एडजस्ट इन द नेक्स्ट अलॉटमेंट और कॉल्स. सो हाउ यू विल एडजस्ट. द नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर ऑफ दिस ग्रुप इज 20,000. इफ वी एडजस्ट विद द रुपी 3 कॉल मनी, 3 allotment money, so 20 into 3, that amount is 60,000 and the difference is also of the 60,000. so जितनी भी excess money application पर आई थी वो सारी allotment से adjust हो गई. it is 1,80,000, 120, 60, nil and 4. now first two entries passed with the help of this table. Bank account debit to share application. The amount of money received, it is 1,84,184. Second entry is share application debit to share capital. जो हमने यूज़ किया to share allotment and to bank. It is 184, 120, allotment is of 60 and bank is of rupee 4,000. नेक्स्ट एंट्री में आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे. शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट सारी एंट्रीज हमारी इशूड शेयर से होंगी. इशू किए थे हमने 60,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट इज ऑफ रुपी 3. सो 60 into 3 इट इज़ 180, 180. नाउ इट इज़ क्लियर कट मेंशन कि अलॉटमेंट से हमें 1,08,000 रुपीज़ रिलाइज हुए. सो यू जस्ट राइट डाउन द अमाउंट डायरेक्टली. कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है. जस्ट राइट टू शेयर allotment. We received 1,08,000 from allotment. Next, due the first call. Share first call debit to share capital. 60,000 share, the first call is of rupee 5. So it is of rupee 3 lakh, 3 lakh. It is mentioned कि first call से हमें 2,50,000 realize हुए. So write down directly bank account debit to share first call. We realized rupee 250 from the first call. आपने नेट अमाउंट सीधा लिख दिया बिकॉज इट इज़ मैंशन. नाउ दे सेड वी हैव टू फॉरफिट द नंबर ऑफ शेयर्स जिनके ऊपर अलॉटमेंट का मिनिमम अमाउंट नहीं आया. तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे. आपको पता है क्या एंट्री होती है. शेयर कैपिटल डेबिट. क्या क्या नहीं आया.
2 शेयर अलॉटमेंट का अरियर हुआ है एंड यू कैन सी ऑल्सो कि फर्स्ट कॉल 3 लाख में से सिर्फ 250 की आई है, तो डेफिनेटली फर्स्ट कॉल का भी अरियर हुआ है. सो 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड लास्टली वी विल राइट 2 शेयर फॉर फ्यूचर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. उसने कहा है अलॉटमेंट वाले शेयर्स को फॉरफिट करना है. हाउ यू विल फाइंड आउट? लुक एट दिस. अलॉटमेंट को ड्यू किया था आपने 1,80,000 से. इट मीन्स 180 हमें अलॉटमेंट से टोटल मनी रिसीव होनी थी, बट हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट की अलॉटमेंट अमाउंट ऑफ ₹60,000. सो 180 में से 60 हम एप्लीकेशन पर मंगवा चुके थे, तो एक्चुअली अलॉटमेंट पर मुझे मिलना था 1,20,000. बट एज पर दिस अमाउंट वी रिसीव्ड ओनली 1,08,000. तो अरियर कितने का हुआ है आपका अलॉटमेंट का? 12,000 रुपीज़ का. एंड द अलॉटमेंट इज़ ऑफ ₹3 पर शेयर. सो 4,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट 12,000 नहीं आई. इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स विच यू हैव टू फॉरफिट दे आर 4,000. 1 शेयर इज़ ऑफ ₹10. अलॉटमेंट है 4,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की. अब जब हम 4,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का अरियर भी हम सिर्फ 4,000 शेयर्स के ऊपर ही दिखाएंगे. एंड द लास्ट इज 4,000 into 2. यू कैन सी द बैलेंस इज 2 ओनली. सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. री इशू के बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है. So this is about this question only. Now look at one more question. Look at this illustration number 28. All rest of the things are same, only one thing is different here. मैं आपको सिर्फ different चीज़ बताती हूँ. Just watch the question. A लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स, 100 का ईच है, 50 की एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 25 की फर्स्ट कॉल, 25 की सेकेंड कॉल. One member holding 400 shares did not pay the second call and his shares were forfeited. 300 of these shares were reissued as fully paid at ₹80 per share. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्या था, आपके जितने शेयर्स को फॉरफिट किया था उतने ही शेयर्स को रीइशू कर दिया था. बट इन दिस क्वेश्चन द फॉरफिटेड शेयर्स आर 400 एंड द रीइशूड शेयर्स आर 300 ओनली. सो लुक एट दिस. क्वेश्चन इज सेम. द शेयर फॉर फीचर एंट्री, यहाँ पर शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर. अमाउंट इज मेंशन एज 40, 10 एंड 30. ये तो फॉर फीचर है आपका. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द एंट्री. देन दे सेड फर्स्टली फॉरफिट द शेयर कैपिटल डेबिट. दे सेड द अरियर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल एंड 2 शेयर फॉर फीचर. 400 शेयर्स से आपके 100 रुपीज़ का ईच था. उसने 25 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी. इट मीन्स उसने 75 रुपीज़ पे किए हुए थे. Out of these 300 shares were issued as fully paid. Fully paid I said 100 रुपीज़ का है यहाँ पर शेयर. 100 का 80 में रीइशू किया. तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल. डिस्काउंट को यहाँ पर शेयर फॉर फीचर बोलते हैं. 300 शेयर्स थे, 100 का एक था. बैंक से हमें रिसीव हुए ओनली 80 रुपीज़. 20 रुपीज़ का है शेयर फॉर फीचर. नेक्स्ट एंट्री आप क्या करते हैं, शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में. पहले आप क्या करते थे, शेयर फॉर फीचर के क्रेडिट में डेबिट बैलेंस लेस कर देते थे. बट इन दिस क्वेश्चन द अमाउंट, द नंबर ऑफ शेयर्स आर डिफरेंट. आपने फॉरफिट किए हैं 400 बट री इशू सिर्फ 300 शेयर्स किए हैं. तो जितने शेयर्स री इशू किए हैं आपको उतने शेयर्स पर कितना फॉरफिट शेयर था वो फाइंड आउट करना है. हाउ यू हैव टू फाइंड आउट? लुक एट दिस. दिस इज 30,000. On 400 shares, the amount of forfeiture is 30,000. What about 300 shares? So 400 divide into 300. After cutting this, you will get the amount. This is ₹22,500. इस 22,500 में से अब जो आपने डेबिट में 6,000 यूज़ किया है वो माइनस कर दीजिए. रेस्ट इज अमाउंट ऑफ CR कैपिटल रिजर्व. वंस अगेन जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उससे डिवाइड किया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स. शेयर फॉर फीचर के अमाउंट को, द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर इज 30,000 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइशूड शेयर्स 22,500. इसमें से अब डेबिट अमाउंट लेस होगा. ये स्टेटमेंट इक्वेशन हम उस सिचुएशन में लगाएंगे जब फॉरफिटेड शेयर्स ज़्यादा होंगे और रीइशूड शेयर्स कम होंगे. सो दिस इज द डिफरेंट थिंग जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके यूटिलाइज होगी. Now look at one question related to the balance sheet. As per illustration number 32, you have to prepare the balance sheet only. Bliss Products registered with a capital of ₹1 crore divided into 1 lakh share of ₹100 each. The company issued prospectus for 42,500 shares.
20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल, बैलेंस है आपका सेकेंड कॉल। तो बैलेंस आपका यहाँ पे यू कैन सी 30, 20, 50 एंड 70, 30 रुपीज़ की आपकी सेकेंड कॉल है। एप्लीकेशन रिसीव की हमने 40,000 शेयर्स की, इशू किए थे 42, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 40,000, सो इट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। Raman, to whom 1600 shares were allotted, failed to pay the final call money, and these shares were forfeited. Of the forfeited shares, 600 were reissued to Sukhman, credited as fully paid. Fully paid means 100 का शेयर 90 रुपीज़ में रीइशू किया। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाई है। आप लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एंड उसका अमाउंट इन द रफ वर्क। दे सेड कंपनी ने इशू किए थे 42,500 शेयर्स एंड वी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स। तो इसका कोई भी रोल नहीं है। नाउ द अमाउंट इज 20, 30, 20 एंड 30। वन शेयर होल्डर रमन, जिसके पास 1600 शेयर्स थे, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, मीन्स उसने 30 रुपीज़ पे नहीं किया। तो हम सीधा डायरेक्ट शेयर फॉर फीचर की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल एंड 2 शेयर फॉर फीचर, बिकॉज हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है यहाँ पर। दे सेट द बैलेंस शीट यू हैव टू प्रिपेयर। 1600 शेयर्स थे, शेयर इज ऑफ ₹100 ईच। अरियर उसने किया 1600 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज़ का, मीन्स उसने पे कितने किए, 70 रुपीज़। नेक्स्ट दे सेट आउट ऑफ दिस 600 वर रीइशूड एज फुली पेड फॉर 90। 100 का 90 में इशू किया, तो बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। 600 वर इशूड ओनली, 100 का ईच था, 90 में 10 रुपीज़ का है आपका शेयर फॉर फीचर। लास्टली you need to transfer share for feature to the capital reserve. How you will transfer? Firstly, multiply this is 11,200 divided by 16 for forfeited shares multiplied by reissued shares. You will get the amount. As you can see, after cutting this, the amount is 42,000 shares. तो 42,000 शेयर, सॉरी शेयर्स नहीं, 42,000 रुपीज़। 42,000 रुपीज़ में से डेबिट का 6,000 माइनस किया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा 36,000 रुपीज़। नाउ एज पर द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसमें जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट होता है, दैट इज़ टू बी एडेड इन शेयर कैपिटल. You have to add the amount of share forfeiture in the capital and less the amount of calls in arrears, if any, as per the statement. तो share forfeiture का वो amount जो हमने यूज़ नहीं किया, this is, ये जो बैलेंस है 36,000, ये तो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया. सो दिस इज़ नॉट शेयर फॉर फीचर, नाउ दिस इज़ कैपिटल रिजर्व. तो ये आपकी बैलेंस शीट के रिजर्व और सरप्लस हेड में आएगा. शेयर फॉर फीचर का वो अमाउंट जो अभी हमने यूज़ नहीं किया, वो अमाउंट कौन सा है? 1600 शेयर्स में से आपने सिर्फ 600 शेयर्स को री इशू किया है. इट मीन्स 1000 शेयर्स को जो आपने री इशू नहीं किया, वो आपका अमाउंट अभी शेयर फॉर फीचर में लेफ्ट है. टोटल शेयर फॉर फीचर का अमाउंट था 1,12,000. उसमें से आपने यूज़ कर लिया कितना? 42,000. सो द लेफ्ट ओवर अमाउंट इज 70,000. This is the amount of share forfeiture which you need to add in the balance sheet. So look at the balance sheet. The authorized capital is mentioned here as 1 lakh shares, 100 ka each. It is 1 crore. We issued 42,500 shares, so it is 42,50,000. Out of this, application were received only for 40,000 shares, and the 40,000 shares is the amount on which we received the application money. So the subscribed shares are 40,000 shares. अब इसमें से जो आपका amount of share for feature है, that amount जो हमने 70,000 अभी find out किया है, that you have to show. Look at this, you issued 40,000 shares. अब उसमें से आपने 1600 shares किए थे forfeit, और out of 1600 you reissued 600 shares. So the number of shares are in the market, they are 39,000 share. One share is of ₹100, so it is 39 lakhs.
add the amount of share forfeiture in it. It is 70,000, so it is 39 lakh 70,000, the last amount of capital which you have to shown in the बैलेंस शीट. वंस अगेन हमने इशू किए थे 40,000 शेयर्स. 40,000 शेयर्स में से 1600 हमने फॉरफिट किए जस्ट बिकॉज ऑफ द अरियर, एंड आउट ऑफ दिस 600 हमने री इशू कर दिए. तो मार्केट में अब कितने शेयर्स हैं? 39,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का ईच. So add the amount of share forfeiture in it. As you can see in the balance sheet, 39,070 lakh is the amount which you received from this shares. So this is about this question. Look at one more. ये क्वेश्चन अभी थोड़े से कंफ्यूजिंग है आपको. जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे फॉर फीचर, कॉल्स इन अरियर्स, ऑल दीज थिंग्स की, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे. Look at one more question with the balance sheet. As per 34, as on 1st of April 2019, Vishwas Limited was formed with an authorized capital of rupee 10 lakh. The company issued prospectus for 90,000 shares. Company received application for 85,000 only. During the year, 8 rupee has been called by the company. Ram holding 1,000 shares and Sham holding 2,000 shares did not pay the first call. Sham shares were forfeited after the first call, and later on 1,500 shares were forfeited. Later on 1,500 of the forfeited shares were reissued at rupee 8 per share as 8 called up. It is a confusing question. So for this you have to sort out the question completely. So look at the balance sheet funds. The authorized capital is 1 lakh of rupee 10 each. It is simple. Company ने issue किए 90,000 share 10 each. This is also simple 9 lakh. Now we received application for 85,000 shares. You received application for 85,000 shares. So अब ये कैसे करेंगे हम इसको? जैसे हमने अभी सीखा है, 85,000 शेयर्स की हमने एप्लीकेशन रिसीव की, तो दिस इज़ द सब्सक्राइब कैपिटल. राम के पास 1,000 शेयर्स थे, शाम के पास आपके 2,000 शेयर्स थे. तो शाम, दोनों ने अरियर किया, राम ने और शाम ने, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. 1,000 शेयर्स राम के एंड 2,000 शेयर्स शाम के, जिसके ऊपर अरियर हुआ है फर्स्ट कॉल का. शाम शेयर्स वर फॉरफिटेड. शाम के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया. इट मीन्स कंपनी ने 85,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स को फॉरफिट किया. यू नीड टू माइनस द फॉरफिटेड शेयर्स प्लस द री इशूड शेयर्स. अब इसमें से 1,500 शेयर्स वर री इशूड. फॉरफिटेड शेयर्स माइनस होंगे और री इशूड शेयर्स प्लस होंगे. इसको करने के बाद आपके पास मार्केट में है 84,500 शेयर्स. 10 रुपीज़ का ईच है, बट कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किए हैं, तो शेयर कैपिटल आपकी 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगी. वंस अगेन 85,000 शेयर सब्सक्राइब थे, जिसमें से हमारा अरियर था राम और शाम का, बट सिर्फ हमने राम के शेयर्स को ही फॉरफिट किया है. तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग माइनस करते हैं फॉरफिटेड शेयर, प्लस करते हैं रीइश्यूड शेयर. दे आर 84,500 मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप कैपिटल. लेस इसमें से होगा कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? जिस पर पैसा नहीं आया शेयर्स पर, बट उनको अभी तक फॉरफिट नहीं किया. राम के शेयर्स थे 1,000, जिस पर उसने कॉल मनी पे नहीं की थी. 1,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़. कॉल्स इन अरियर इज ऑफ 2 रुपीज़. दिस इज़ टू बी माइनस. इन शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है, तो सिर्फ हम इसमें लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स. ऐड होगा इसमें व्हाट? शेयर फॉर feature. That share for feature you have to find out with the help of the solution. As per the solution it is 3,000, so you need to add the amount of share for feature. जो शेयर्स 500 देखिए 2,000 फॉरफिट किए थे, उसमें से 1,500 हम यूज़ कर चुके हैं. इट मीन्स 500 शेयर्स का फॉर फीचर अभी तक हमने यूज़ नहीं किया. सो 500 शेयर्स के ऊपर आपका फॉर फीचर बन रहा है यहाँ पर 3,000 रुपीज़. दिस यू हैव टू ऐड. सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ नाउ 6,77,000. So this is about this question. Now we have some small sections of questions. As you can see, illustration number 18. जो अभी हमने पीछे बड़े क्वेश्चंस में किया, अब वो छोटे क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया है. Look at one illustration number 38. The second part of this. वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए, ये सिर्फ सिंपल शेयर फॉर फीचर किए हैं. 300 शेयर 10 का ईच है, 7 कॉल्ड अप. जब आपको कोल्ड अप अमाउंट ऑफ दिया होता है, तो शेयर में हमें कोल्ड अप अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करना होता है. द फर्स्ट एंट्री फॉर द शेयर फॉर फीचर इज शेयर कैपिटल डेबिट. द अरियर इज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल. ही इज नॉट एबल टू पे द फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड द रेस्ट इज टू शेयर फॉर फीचर.
300 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू को छोड़ दीजिए, कॉल्ड अप अमाउंट 7 है, तो 300 के ऊपर कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे 7। फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की 2 की, एंड द रेस्ट इज शेयर फॉर फीचर। आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर इशूड एट ₹6 पर शेयर। अब कॉल्ड अप से कंपैरिजन करेंगे, 7 रुपीज़ का शेयर उसने 6 रुपीज़ में इशू किया। बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। 100 शेयर से 7 रुपीज़ के इशू पर आए हैं 6 रुपीज़, 1 का हो गया शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफ़र करते हैं वेयर CR में। नाउ द नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आर मोर एज कम्पेयर टू द रीइशू शेयर्स, तो आपको इक्वेशन लगानी होगी। शेयर फॉर फीचर है 1500 बाय दिस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशूड शेयर। सो इट इज़ 500 में से माइनस करेंगे जो आपने डेबिट में यूज़ किए 100, सो यू विल गेट CR अमाउंट एज 400. Look at one more. Look at this one, last one. X Limited forfeited 100 shares of 10 each, 7 called up, on which the shareholder has paid the application of ₹5. इसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है। इसने कहा है शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की, सो द एंट्री फॉर द फॉरफीचर इज शेयर कैपिटल डेबिट। यहाँ पर आपको उसने कहा है एप्लीकेशन मनी पे की है उसने सिर्फ, तो आपको ये नहीं पता कितने की कॉल्स थी, तो यू विल राइट टू कॉल्स इन अरियर्स एंड 2 शेयर फॉर फीचर। 600 शेयर से, सॉरी दिस इज 100 शेयर नॉट 600, 600 इससे प्रीवियस है। 100 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप है 7 रुपीज़। नेक्स्ट उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे की, उसने जो पे करते हैं वो होता है शेयर फॉर फीचर 5 रुपीज़, तो कॉल सी अरियर्स कितना हुआ 2 रुपीज़। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइशूड टू Y for ₹8 एज 8 पेड अप। 8 का 8 में ही रीइशू किया, तो बैंक डेबिट 2 शेयर कैपिटल। 80 shares were reissued to Y for ₹8 per share as 8 paid up per share. So 80 into 8 is the amount received at the time of reissue. Last entry, share for feature will be transferred to the capital reserve. Find out the reserve amount. Share for feature is 500 divided by forfeited shares into reissued shares. So it is 400. डेबिट में यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं हुआ है, सो 4 का 400 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस जो हम पीछे शेयर फॉर फीचर का बड़ा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको आई थिंक ये बहुत ईजी लगेंगे। द नेक्स्ट वन, एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। इन illustration number 39, as you can see, Ravi Limited forfeited 800 shares of ₹10 each, 7.5 paid. पेड का मतलब है कंपनी ने पूरा 10 रुपीज़ का मंगवाया, वो शेयर होल्डर ने पे करने में अरियर किया, तो यहाँ पर शेयर आपका 800 इंटू 10 8,000 रुपीज़ का ही होगा। अगर कॉल्ड अप होता तो 800 इंटू 7.5 होता, पेड अप है तो 800 इंटू 10 ही है। दिस 2.5 इज द अरियर मेड बाय द शेयर होल्डर। सो नाउ यू जस्ट हैव टू सॉर्ट आउट अप टू illustration number 39 today. The next topic related to forfeiture of shares at Premier I will discuss in my next video. Thank you so much.